Hello student, I am Dr. Shabab Ali Khan, Assistant Professor, FG Degree College, Hyderabad. And today I am going to give you introduction of photosynthesis. Today I am going to tell you about photosynthesis. In previous lecture, I told you that the ultimate source of energy for on Earth for living organism is sun. As in previous lecture, I told you that ultimate source of energy on this earth is sun, which provide energy in the form of photon, which provide energy in the form of photon. And, and these photon can be absorbed directly to acquire the energy. But animal and plant system cannot utilize this energy to run their life cycle. So these photon can be absorbed by plant, but animal and plant cannot utilize energy of this photon directly. मतलब they do not directly utilize this energy to run their life cycle because our biological system is not competent enough to directly use this energy to run their life cycle. Now, what they have to do? They have to convert this energy to synthesis chemical molecule. Now, they have to do they have to do to convert this energy to the synthesis of chemical molecule. And you know what is this chemical molecule? This chemical molecule is glucose. And store the energy in the form of bond. Then they have to break down this chemical. Then they have to break down this chemical, and that actually release energy. That actually release energy. And this free energy is used to run their life cycle. Means the ultimate source of energy on this earth is sun, and the energy of sun come in the form of photon, and this photon, the energy of this photon not directly used by plants or animal to run their life cycle. Now, as you can see that ultimate source of energy is the sun, which is providing energy in the form of photon, and that be used to synthesis chemical molecule. And the plant has the ability to do this function by the process of photosynthesis, and by the process by which this chemical molecule break down to release energy is respiration. तो देखें, अभी मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि हमारी जो जमीन है, हमारी जमीन पर जो अर्थ है, इस पर अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो क्या है, वो सन है। अब सन की जो एनर्जी है वो फोटोन, सन की जो एनर्जी में जो एनर्जी पैकेट्स होते हैं जिनको हम फोटोन कहते हैं, वो फोटोन प्लांट एब्जॉर्ब तो कर सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन उस एनर्जी को डायरेक्टली प्लांट या एनिमल अपने लाइफ साइकिल के लिए या अपने लाइफ के फंक्शंस को करने के लिए, वर्कआउट कराने के लिए उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। पहले उनको क्या करना पड़ेगा, इन फोटोन को एक केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर उस केमिकल एनर्जी के अंदर जो बॉन्ड हैं, जो वो ब्रेक डाउन होंगे, तो उससे फिर फ्री एनर्जी यूज होगी। जो एनर्जी उससे जो यूज होगी, उस फ्री एनर्जी को फिर जो है वो प्लांट या एनिमल अपनी लाइफ साइकिल के लिए यूज करते हैं। और वो प्रोसेस प्लांट के पास ये एबिलिटी होती है, या कुछ बैक्टीरिया के पास भी ये एबिलिटी है, कुछ एलजीबी के पास भी ये एबिलिटी है, जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास ये एबिलिटी होती है कि इस फोटोन की एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो किसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं? फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो देखो, फोटोसिंथेसिस को हम डिफरेंट बेसिस पर जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। आपकी बुक में जो फोटोसिंथेसिस को डिफाइन किया गया है वो दो बेसिस पर डिफाइन किया है। एक तो केमिकल बेसिस पे फोटोसिंथेसिस को डिफाइन किया है, और दूसरा जो आपकी बुक में डिफाइन किया है फोटोसिंथेसिस को, वो बायो एनर्जेटिकली यानी एनर्जी बेसिस पर जो है वो डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो अब इधर देखें, फोटोसिंथेसिस के जो लफ्जी मायने हैं, फोटो का मतलब क्या होता है? What is the meaning of photo? Photo means light, and synthesis means
पुट टुगेदर या टू बिल्ड अप। तो यही होता है फोटोसिंथेसिस में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को जब आप पुट टुगेदर करते हो लाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, तो उससे किस चीज की सिंथेसिस होती है? ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है। अब हम जो है वो फोटोसिंथेसिस को जो है वो केमिकल बेसिस पर अगर डिफाइन करें, तो फोटोसिंथेसिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस कौन सा रिएक्शन है? ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। अब आपको पता है कि रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या हो गया? री मतलब रिडक्शन, रीड मतलब रिडक्शन, ऑक्स का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन। यानी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रिडक्शन भी होती है, जिसमें क्या होती है? जिसमें रिडक्शन भी होती है, और जिसमें क्या होती है? ऑक्सीडेशन भी होती है। आप लोग जानते हैं कि रिडक्शन हम किसको कहते हैं और ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं? किसी मॉलिक्यूल के साथ जब हाइड्रोजन अटैच होते हैं या इलेक्ट्रॉन आकर अटैच होते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रिडक्शन। और जब किसी मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन रिलीज होते हैं या इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं या ऑक्सीजन ऐड होती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब इधर देखें, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है इज अ रिडॉक्स रिएक्शन इन विच कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस। मतलब फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? रिड्यूस होती है। कैसे कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होती है? यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? तो देखो, ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है, ये जो 12 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें से जो 6 वाटर के मॉलिक्यूल में से जो 6 वाटर के मॉलिक्यूल हैं, वो अपने जो है वो 6 हाइड्रोजन जो है वो किसको दे देते हैं? वो दे देते हैं इस कार्बन डाइऑक्साइड को। तो अब देखो, वाटर अपने हाइड्रोजन दे रहा है किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को। तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब हाइड्रोजन अटैच हो रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गई है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हुई है। और इसने रिड्यूस होकर क्या बना लिया? इसने रिड्यूस होकर बना लिया ये ग्लूकोज। मैंने कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जब ग्लूकोज में कन्वर्ट हुई, तो ग्लूकोज में आपको ये जो 12 मॉलिक्यूल नजर आ रहे हैं हाइड्रोजन के, ये कहाँ से आए हैं? ये बेसिकली वाटर से आए हैं। वाटर ने अपने हाइड्रोजन किसको दिए हैं? वाटर ने अपने 12 हाइड्रोजन जो इसके पास आए हैं वो कहाँ से आए हैं? वो आए हैं बेसिकली किधर से? वाटर से। और इसी तरीके से क्या हुआ कि ये कार्बन डाइऑक्साइड तो रिड्यूस हो गई, लेकिन क्योंकि वाटर से हाइड्रोजन निकला है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर किसने दिया है? सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड को जो हाइड्रोजन दिया है वो किसने दिया है? वाटर ने दिया है। तो वाटर यहाँ पर जो है वो किसके तौर पर इस्तेमाल हुआ है? रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे। यानी इस कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने वाला कौन है? ये वाटर है। इस वाटर ने अपने हाइड्रोजन देके इस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया है? रिड्यूस किया है। फिर मैंने आपको बताया था कि जब हाइड्रोजन किसी कंपाउंड से रिलीज होते हैं, तो उसकी बेसिकली रिडक्शन नहीं होती, उसकी क्या होती है? ऑक्सीडेशन हो जाती है। तो वाटर जब अब अपने हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड को दे देगा, तो वाटर ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसके अंदर? ऑक्सीजन में। मतलब इसने हाइड्रोजन अपने इसको दिए, तो बाकी क्या रह गया? बाकी इसमें ऑक्सीजन बच गई। और बाकी जो वाटर के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बाकी बच जाएंगे, वो किस फॉर्म में आ जाएंगे? वो वाटर की फॉर्म में आ जाएंगे। तो केमिकली वी कैन डिफाइन फोटोसिंथेसिस एज इट इज अ redox reaction in which carbon dioxide is reduced into glucose. Here you can say that, you can see that carbon dioxide is reduced into glucose, and which is reducing agent. तो water act as a reducing agent, it oxidize into oxygen। ये खुद किसमें ऑक्सीडाइज हो जाता है? यानी इससे हाइड्रोजन निकले तो ये इसने क्या बाकी रह गया? इसमें ऑक्सीजन। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में, अब याद रखने वाली बात इधर ये जो है इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कौन सा इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो रिड्यूस होता है और कौन सा ऑक्सीडाइज होता है, तो आप बताएंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होती है और वाटर जो है वो क्या हो जाता है? वाटर ऑक्सीडाइज हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर क्या बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर ग्लूकोज बनाती है। और वाटर ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है? वाटर ऑक्सीडाइज होकर ऑक्सीजन बना लेता है। अब ये वाला वाटर कहाँ से आ जाता है, ये मैं भी आपको आगे बताता हूँ। चलो, ये तो हमने केमिकल बेस पे डेफिनेशन देख ली। चलो अब डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं एक बायो एनर्जेटिकली, एनर्जेटिक एनर्जी की बेस पर जो है वो फोटोसिंथेसिस को डिफाइन कर लेते हैं। बायो एनर्जेटिकली, photosynthesis is an energy conversion process in which energy poor molecule carbon dioxide and water are transformed into energy rich molecule। देखो, बायो एनर्जेटिकली अगर हम बात करें, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इनमें इतनी एनर्जी नहीं होती है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल हैं। और फिर क्या होता है? ये एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल
सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर कर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल में, और वो क्या है, वो है ग्लूकोज। तो बायोएनर्जेटिकली हम फोटोसिंथेसिस को डिफाइन कर सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या है, एक एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस है जिसमें एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल मींस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर ट्रांसफॉर्म इनटू एनर्जी रिच मॉलिक्यूल व्हिच इज ग्लूकोज। और इस प्रोसेस के लिए क्या चाहिए होती है, सोलर एनर्जी। तो हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ऑफ फूड। And how this food is formed? It is formed from energy poor molecule carbon dioxide and water. They react in the presence of sunlight. चलें अब एक और चीज देख लेते हैं। फोटोसिंथेसिस के अंदर जो इन्वॉल्व होते हैं, जो इंटरएक्शन होता है, वो किस किस का होता है, सनलाइट का, पिगमेंट्स का, वाटर का और कार्बन डाइऑक्साइड का। ये सब आपस में इंटरेक्ट करते हैं। चलें इनका इंटरेक्शन को थोड़ा सा यहाँ पर भी एक दफा देख लेते हैं। मैं एक बार यहाँ पर फिर फोटोसिंथेसिस की जो है वो रिएक्शन जो है वो लिखने लगा हूं। चलें ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड एंड दिस इज वाटर मॉलिक्यूल। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों रिएक्टेंट हैं। किसमें, फोटोसिंथेसिस में ये दोनों रिएक्टेंट हैं। तो चलो रिएक्टेंट हैं तो प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट जो है वो ग्लूकोज है। प्रोडक्ट जो है वो ग्लूकोज है। ग्लूकोज के साथ जो दूसरी प्रोडक्ट मिल रही है वो ऑक्सीजन मिल रही है, और उसके साथ वाटर भी मिल रहा है। चलें अब इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। 6 मॉलिक्यूल यूज होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, 12 मॉलिक्यूल यूज होते हैं वाटर के। इसके रिजल्ट में एक मॉलिक्यूल बनता है कार्बन डाइऑक्साइड का, 6 मॉलिक्यूल बनते हैं ऑक्सीजन के, और 6 ही मॉलिक्यूल बनते हैं वाटर के। और किसकी प्रेजेंस में बनते हैं, ये बनते हैं सनलाइट और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट स्पेशली क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। ये मैंने पूरी इसकी रिएक्शन लिखा और इस रिएक्शन को बैलेंस भी कर दिया। अब मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, इस रिएक्शन को सिंपलीफाई कर देता हूँ। इसको थोड़ा सिंपलीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को हम 6 से डिवाइड कर देते हैं। तो वो कैसे मैं 6 से डिवाइड कर रहा हूँ, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6। इसके बाद फिर 6 1 जा 6, 6 1 जा 6। तो अब देखो इस रिएक्शन को हमने सिंपल कर लिया। जब हमने इसको रिएक्शन को सिंपल किया तो कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल हो गए, एक। वाटर के कितने मॉलिक्यूल हो गए, टू। सनलाइट और क्लोरोफिल तो होगी। और ग्लूकोज का कितना मॉलिक्यूल हो गया, लेकिन ग्लूकोज अपनी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया CH2O में। सही है। इसके बाद ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल हो गए, एक। और वाटर का भी कितना मॉलिक्यूल हो गया, एक। अब कैसे बनते हैं, कैसे इनका आपस में रिएक्शन होता है, इसको मैं आपको थोड़ा सा एक इसके स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखकर जो है वो समझाऊंगा। चलो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का एक मॉलिक्यूल होता है और ऑक्सीजन के कितने एटम होते हैं, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का एक एटम होता है और ऑक्सीजन के दो एटम होते हैं। मैं इसको यहाँ ऐसे लिख रहा हूँ, ये लो, कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन के कितने एटम हो गए, दो एटम। ये मैंने क्या लिख दिया, ये मैंने कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पर मोलिकुलर फार्मूला था, यहाँ मैंने इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख दिया। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड का मोलिक्यूल यहाँ सिंपल होके एक कार्बन डाइऑक्साइड का मोलिक्यूल आया, तो मैंने यहाँ पर भी एक ही कार्बन डाइऑक्साइड का मोलिक्यूल बना दिया। उसके बाद वाटर के जो मोलिक्यूल यूज होते हैं वो दो होते हैं, HOH। ये इसको थोड़ा सा मैंने स्ट्रक्चर फार्मूला बना दिया इसका। यहाँ पर भी वाटर का मैंने ये स्ट्रक्चर फार्मूला लिख दिया। वाटर के यहाँ कितने मॉलिक्यूल इस्तेमाल हुए, दो। मतलब इसको जब हमने सिंपल किया इक्वेशन को, तो वाटर के मॉलिक्यूल कितने हो गए, दो। उसके बाद ये तो हमने ये अब ये आपस में रिएक्ट करेंगे। अब इनका आपस में क्या होगा, रिएक्शन होगा। तो देख लेते हैं इनके रिएक्शन से किस तरीके से ये ग्लूकोज, सिंपल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर बनते हैं। तो इधर देखें, अब अगर मैं इसको, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन और ये जो है वो हाइड्रोजन, ये आपस में जब मिले तो इनके मिलने से बन गया CH2O, ये सिंपल ग्लूकोज। ग्लूकोज की या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की एक सिंपल फॉर्म ये बन गई, ये बन गया। सही है। अब दूसरे नंबर पर आप देखें ऑक्सीजन भी बन रही है। तो ये क्या है, ये एक ऑक्सीजन का एटम, सॉरी इसको मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूं इसके लिए। ये एक ऑक्सीजन का एटम और ये दूसरा ऑक्सीजन का एटम।
इन दोनों ने मिलकर क्या बना लिया, इन दोनों ने मिलकर बना लिया ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल। बाकी रह गया एक वाटर का मॉलिक्यूल। तो वाटर का मॉलिक्यूल बनाने के लिए यहाँ पर बाकी अब क्या रह गए, बाकी रह गए दो हाइड्रोजन, ये रहे ये दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन रह गए, और उसके साथ एक क्या है, ये ऑक्सीजन। तो देखो किसका मॉलिक्यूल बन गया, ये वाटर का मॉलिक्यूल बन गया। तो सिंपली हमने इसको इस तरीके से थोड़ा-सा जो है वो आपको समझाने के लिए इस इक्वेशन को मैंने सबसे पहले क्या किया, इस इक्वेशन को मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, सिंपल कर दिया। और सिंपल किस तरह से किया, इस इक्वेशन को 6 से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। जब हमने इस इक्वेशन को 6 से डिवाइड किया तो हमारे पास एक कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, दो वाटर के मॉलिक्यूल आ गए, एक CH2O आ गया, सिंपल कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म आ गई, एक ऑक्सीजन आ गया और एक वाटर। फिर हमने क्या किया, इनका यहाँ पर स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख दिया, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक वाटर। तो अब हम देखें किस तरीके से एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक वाटर से जो है हमें ये तीनों चीजें जो हैं वो क्या हैं, मिल गई। और यहाँ ये क्या बन गया, H2O। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कार्बन, ये ऑक्सीजन और ये दो हाइड्रोजन, ये येलो कलर का जो ये आ रहा है, इसमें जो है ये क्या बन गया, ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद ये दो मॉलिक्यूल ये दो एटम ऑक्सीजन के मिले तो क्या बन गया, ये ऑक्सीजन, इधर देखें। और दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिला तो वाटर बन गया। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से वाटर रिएक्टेंट में भी आ रहा है और वाटर किस में आ रहा है, प्रोडक्ट में भी आ रहा है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। अच्छा, एक और चीज मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखो, हमने कहा कि फोटोसिंथेसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है, वाटर की भी जरूरत है, सही है ना। इसके साथ सनलाइट की जरूरत है और पिगमेंट की भी जरूरत है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट आपके साथ शेयर करूंगा, आपकी बुक में तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस एक्सपेरिमेंट को आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। जोसेफ प्रिस्टले, आई थिंक ये साइंटिस्ट था जिसने ये एक्सपेरिमेंट दिया था। इसको कहते हैं मिंट माउंट एक्सपेरिमेंट, मिंट माउस एक्सपेरिमेंट कहते हैं मेरे ख्याल से इसको, मिंट माउस एक्सपेरिमेंट। देखो इसमें, इस एक्सपेरिमेंट में इसने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट में इसने ये काम किया कि एक बेल बेल शेप का एक जार लिया, ऐसे ऐसे एक बेल शेप का क्या लिया इसने, ये जार लिया। इस जार के अंदर एक कैंडल जला दी और इसमें जो है वो क्या रख दिया, एक माउस। ये बेल शेप का एक जार था, जार में ये कैंडल और ये माउस। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, ये कैंडल बुझ गई और माउस की भी डेथ हो गई। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इस वजह से हुआ, देखो कैंडल क्यों बुझ गई, क्योंकि कैंडल को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए थी, यहाँ ऑक्सीजन है नहीं। और प्लांट को जो है वो, इसको माउस को अपनी रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए थी, तो भी ऑक्सीजन नहीं है। थोड़ी बहुत ऑक्सीजन जो थी वो माउस ने अपनी रेस्पिरेशन में इस्तेमाल कर ली और कैंडल ने अपने जलने में इस्तेमाल कर ली। जब ऑक्सीजन खत्म हो गई तो कैंडल भी बुझ गई और साथ में क्या हुआ, माउस भी की भी डेथ हो गई। तो जोसेफ प्रिस्टले ने ये बताना चाह रहा था कि प्लांट्स जो हैं वो हमारी एयर को प्यूरिफाई करते हैं। कैसे, अब इस एक्सपेरिमेंट के दूसरे पार्ट में इसने क्या किया, दूसरे पार्ट में फिर इसने बेल शेप का क्या लिया, एक जार लिया, इसको लाइट में यानी रोशनी में रख दिया और फिर इसने जला दी एक कैंडल। फिर उसके अंदर जो है उसने एक माउस भी रख दिया, लेकिन माउस के साथ उसने क्या किया, एक मिंट प्लांट जो है, मिंट प्लांट भी रख दिया। तो उसने देखा कि इस जार के अंदर माउस भी जिंदा रहा, कैंडल भी जलती रही, माउस भी जिंदा रहा और कैंडल भी जलती रही। अब ऐसे तो नहीं होगा कि बहुत टाइम के लिए, लेकिन काफी टाइम तक माउस भी जिंदा रहा और कैंडल जलती रही। ये क्यों माउस जिंदा रहा और कैंडल जलती रही, तो इसमें देखो यहाँ पर ये हुआ होगा कि प्लांट ने फोटोसिंथेसिस की होगी। जब प्लांट ने फोटोसिंथेसिस की थी तो प्लांट क्या रिलीज कर रहा था, ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन जो है वो किसके, कौन इस्तेमाल कर रहा था, वो ऑक्सीजन जो है वो कैंडल को बर्न होने में भी हेल्प कर रही थी। और साथ में ये ऑक्सीजन जो है जो रिलीज हो रही थी, ये रेस्पिरेशन में भी जो है वो माउस के हेल्प कर रही थी। और प्लांट को अपनी फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो ये जो माउस था ये अपनी रेस्पिरेशन के दौरान क्या रिलीज कर रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट में भी जो रेस्पिरेशन होती है उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, और बर्निंग से भी क्या रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर तो पहले से ही इस प्लांट के अंदर होगा।
तो इस तरीके से देखें, ये तीनों चीजें जो हैं वो उसने इस तरह से बताया कि ये किस तरीके से आपस में इनका जो है वो रिएक्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड का और किसका, ऑक्सीजन का, कहाँ कहाँ पर ये दोनों जो है वो यूज हो रहे हैं। अच्छा, अब इधर देखें, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर जो इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं उसमें क्या है, एक सनलाइट है, एक पिगमेंट है, वाटर वाटर है और कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इन तमाम जो फोटोसिंथेसिस की जो रिक्वायरमेंट हैं, जिस तरीके से सनलाइट, पिगमेंट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इनका क्या देखेंगे, इनका रोल देखेंगे। तो व्हाट आई टोल्ड यू टुडे, फर्स्ट ऑफ ऑल आई टोल्ड यू अबाउट that how this sunlight is used in the process of photosynthesis, that plant or animal cannot use this photon or this energy of light directly to run their life cycle. First of all, they use the energy of this photon to build chemical by the process of photosynthesis. Then these chemicals break down by the process of respiration to release energy. After that, I told you about definitions of photosynthesis, and here I define photosynthesis on two bases. On the basis of chemically I defined it, and on the basis of energy level, or on the basis of bioenergetically. On the basis of chemistry or on the chemically, we can define photosynthesis. It is a redox reaction in which carbon dioxide is reduced and water is oxidized to form glucose, and oxygen. And when we define bioenergetically, so bioenergetically, photosynthesis is an energy conversion process in which energy poor molecule, carbon dioxide and water, they are energy poor molecule, they convert into energy rich organic molecule glucose in the presence of sunlight. So we can say that in the photosynthesis, solar energy or radiant energy convert into chemical energy of food. After that, I have explained the equation of this reactions of photosynthesis in detail. And in next lecture, I will tell you about the role of sunlight in photosynthesis.